Hello everyone, how are you all? Welcome back to Sunya IES. And as we are proceeding to finish our course on modern history, which we will be doing it through the most recommended book, that is Spectrum. And ये हम कर कैसे रहे हैं? Through MCQs. जिन्होंने देख रखा है दे कैन स्किप दिस इंट्रो पार्ट, बट जिन्होंने नहीं देखा है तो एक बार आप पूरी सीरीज चेक करिएगा। हम चैप्टर नंबर 23 में पहुंच गए हैं। दिस इज थ्रू स्पेक्ट्रम। एंड हमने स्पेक्ट्रम लाइन वाइज नहीं पढ़ाई यार, हमने स्पेक्ट्रम एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट हर एक पैराग्राफ या हर एक पेज से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाए हैं, जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग एक बार अगर आपने चेक नहीं किया तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए एंड एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। So let's proceed, and before proceeding, as usual, we'll just see how we have proceeded till now. We have proceeded from 1498 till 1947. We have completed in the last class. In today's class, we'll be talking about the constitutional, administrative, and judicial changes that took place in the British era or introduced by the Britishers. क्या चेंजेस लाए थे? 1419 से हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस देखा, देन इंडिया ऑन द ईव ऑफ दिस कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट देखा, फिर हमने एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर देखा, and then we move on to people resentment before 1857. Then we saw the 1857 Kranti. Then we saw social religious reforms, and we saw the formation of INC and extremists versus what do we say, liberal moderates approach. Then we saw the revolutionary phase one and Morlamento reforms. Then we saw the emergence of Gandhi and NCM, non-cooperation movement. Then we saw Chora Chori case and Swarajis and non-Swarajis. Then we saw revolutionary phase two. In all these chapters we are seeing this year, you have to likewise we are moving towards this timeline. In between we have filled all the timelines which we wanted to know. After the revolutionary phase, we came to know about the Simon Commission. We saw the Nehru report. Then we saw the Lahore formation, or we can say the Muslim League का जो Lahore resolution था. Then we saw 1940s August offer, 1942 Quit India movement. In between, in this Cripps mission was also offered. Quit India movement. Then we saw Wavell's plan and cabinet mission plan. Then we saw the coming up of Mountbatten and Mountbatten's plan. We saw the partition of India's independence. We can say that India's Independence Act. Now in this class we are going to see all the policies related to constitutional change, administrative change and judicial change. Right? As we all know that constitutional changes happen since 1773, then regulating act जिसे बोलते हैं, then 1784 Pitt's India Act, then 1793 in Pitt's India Charter Act, then 1813 Charter Act, 1833 Charter Act, 1853, then we saw 1858, 1861, 1861, 1893, then 1909, 1919, 1935. These all are important, which you study in Spectrum plus Lakshmikant first chapter 2, if I am not wrong. And you know the importance of these charters. These are constitutional changes which had taken place in the British rule. प्रोविजन क्या थे यार? पहले कंपनी रूल से इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का होल्ड बनाया, देन वॉइस रॉय, देन कंप्लीटली एक पॉलिटिकल एंटिटी बनाई एंड देन ट्रांसफर कर दी पावर को इंडिया के हाथों में इन 1947 एक्ट के थ्रू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें पढ़ने पड़ते हैं, और इसमें से 2021 में अगर आपने चेक नहीं किया होगा तो उसमें से सेकंड क्वेश्चन सेट मेरे ख्याल से बी इससे रिलेटेड था 1990 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म से, इन वाले मॉन्टेग्यू से। राइट, तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को देखेंगे। देन वी सॉ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, वी डिडंट मतलब वी विल सी इट राइट नाउ। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में पुलिस सिस्टम देखेंगे, सिविल सर्विसेज देखेंगे, ठीक है, लोकल बॉडीज पे देखेंगे, प्रोविंशियल पे देखेंगे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पे देखेंगे। जुडिशियल में भी हम जुडिशियल चेंजेस में भी देखेंगे कैसे हमने सेंटर में चेंज करा एंड प्रोविंसेस में चेंज करा। राइट, थ्रू एमसीक्यूज विल सी ऑल ऑफ दिस।
So first question is related to Regulating Act of 1773. The Governor General of India replaced the Governor General of Bengal. तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रिप्लेस्ड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में हो गया था क्या? क्वेश्चन मार्क. In situation of war and peace, the Governor General in Council was made paramount over the other presidency. The term of office of the president, the term of office of the members of the Court of Directors was fixed at 5 years. The Supreme Court was established at Bombay as per the Act. तो आपने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ध्यान में रखना है एंड इसके थ्री ध्यान में रखना है क्या क्या चेंजेस हुए. ठीक है. तो रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों? यहाँ पर कंपनी रूल कर रही थी और रैम्पेंट करप्शन कर रही थी. ब्रिटिशर्स को लगा यार इनका अब इनके होल्ड बनाना पड़ेगा, तो इनको एक रेगुलेशन के तहत बांध दिया गया. रेगुलेशन के तहत इनको क्या कहा गया? गवर्नर अब गवर्नर नहीं है, गवर्नर जनरल है. ऑफ इंडिया अभी तक नहीं आया, सिर्फ गवर्नर जनरल बोला गया. तो कोई भी गवर्नर जो था इंडिया का उस टाइम पे, जो वॉरेन हेस्टिंग थे, उनको गवर्नर जनरल बोला गया उसके बाद से. ठीक है. इनकी पावर, ओवरराइडिंग पावर दी गई इनको अगेंस्ट अदर प्रेसिडेंसी, बिहार और वो बॉम्बे एंड मद्रास के अगेंस्ट में. तो पॉइंट सही है ये. सेकंड चीज आपने क्या देखनी है कि आपने देखना है कि यार ये जो गवर्नर जनरल हमने बना दिए हैं अब, इनके पास इन्होंने 4 मेंबर्स और दिए इनकी काउंसिल में. तो काउंसिल गवर्नर जनरल की 4 मेंबर से बनी है. अब ये मेजोरिटी रूल करेंगे. तो टोटल कितने हुए? 5. तो 5 में से 3 वोट जिसके में फेवर हुए ऐसे काम करेंगे ये मेजोरिटी में. ठीक है. पैरामाउंटी वाला बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है. अगर आपको फर्स्ट भी गलत पता है तो सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है अभी. 2 सही है क्योंकि 2 यहीं पर है सिर्फ, तो बी ओनली आंसर होना चाहिए क्योंकि फोर्थ भी गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट के तहत कैलकाटा में बनाने की शुरुआत करी थी विद 3 अदर जजेस और चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस. तो ये गलत है फोर्थ. तो 4 गलत करते ही आप ये भी गलत करोगे. टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया कंपनी को एडमिनिस्टर करने के लिए. आप आगे देखोगे 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया गया. ठीक है. Which of the following forms of the provision of the Pitt's India Act 1784? Which of the following forms the provisions of the Pitt's India Act 1784? Which of the following forms the provision Pitt's India Act का आ गया? It provided for the creation of board of control having 6 members, all of whom were to be appointed by the crown. Governor General Council was to consist of 4 members including the commander in chief. करेक्ट सेलेक्ट करना है दोस्तों. तो आपने देखना है यार गवर्नर जनरल की काउंसिल को ना 3 बना दी गई थी. 3 मेंबर्स और इन 3 मेंबर्स में से एक कमांडर इन चीफ होंगे. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है. एंड इट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया था जिसके 6 मेंबर क्राउन इलेक्ट करेगा जो ब्रिटिशर्स होंगे. ये कंपनी के पॉलिटिकल एंड सिविल अफेयर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को देखेगा. जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो कमर्शियल अफेयर्स को देख रहा था. तो ए सही है. Which of the following are original provisions of the 1786? It specifically named Cornwallis to have the powers of both Governor General and the Commander in Chief. Correct. All the future Governor General were allowed to override the council decision if they owned the responsibility for the decision. Correct ढूंढना है. तो ये 2 प्रोविजन ना स्पेसिफिकली कॉर्नवालिस के लिए आए थे बट लेटर इनको एक्सटेंड कर दिया गया था. तो ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स के लिए नहीं थे, कॉर्नवालिस के लिए था. तो सेकंड गलत हो जाएगा, ए फर्स्ट रहेगा. देखो 1773 के पास एक अमेंडमेंट आया इस एक्ट के लिए 1786 में, तो ये अमेंडमेंट था. लेकिन 1784 में आया पिट्स इंडिया. ठीक है, ये ध्यान में रखना. 1793 का चार्टर एक्ट देखिए. इट रिन्यूड द कंपनीज कमर्शियल प्रिविलेज फॉर 20 years, राइट. द रॉयल अप्रूवल वाज नो मोर मैंडेटरी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल. रॉयल अप्रूवल चाहिए थी अब इनके लिए. ठीक है. रॉयल अप्रूवल मतलब अगर आपने गवर्नर जनरल अपॉइंट किया, सपोज ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, मैं प्राइवेट हूँ, मैं अपॉइंट कर रहा हूँ गवर्नर जनरल, अपने गवर्नर जनरल में अपॉइंट कर रहा हूँ, तो इसमें अब रॉयल की अप्रूवल भी होगी, मतलब कि क्राउन अप्रूवल देगा यहाँ से. इट प्रोवाइडेड दैट द होम गवर्नमेंट मेंबर्स वर टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज. करेक्ट ढूंढना है. तो ये ध्यान में रखियो कि आप 2 नहीं है, रॉयल अप्रूवल चाहिए थी. जैसे ही करेंगे आंसर पे आप कूद पड़ेंगे. ठीक है. ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ इंडिया ट्रेड वाज अबॉलिश्ड. ईआईसी की ट्रेड पे मोनोपोली कैसे टूटी थी? एक्सेप्ट चाइना एंड टी ट्रेड. तो 1813 के चार्टर एक्ट पे निकल गई थी यार.
1833 में सारे कमर्शियल, चाइना और हमने टी पे जो लगा रखा था वो भी खत्म हो गया था कमर्शियल ट्रेड। Consider the following statement with respect to the Charter Act of 1833. The company's monopoly on commerce with India came to an end. It included it included measure for abolition of slavery. ये abolition of slavery 1847 में हुआ था यार। The Madras and Bombay governments recovered legislative authority. Legislation करने लग गए थे, नो। तो थर्ड मेरा बिल्कुल गलत है, एक गया। ठीक है, तो बच्चे मेरे पास तीन ऑप्शन। तो इधर देखो क्या लिखा, कंपनीज की मोनोपोली ऑन कॉमर्स विद इंडिया नहीं, कंपनीज की विद इंडिया नहीं बल्कि चाइना एंड टी, ये चला गया। इंडिया के साथ तो चलेगा ही चलेगा, अभी इंडिया के साथ ही खत्म हो जाएगा तो कॉलोनी नहीं खत्म हो जाएगी। सी विल बी द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट 1853 का चार्टर एक्ट। द स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर इंक्रीज टू 25। The law member became the full member of the Governor General's Executive Council. जी की काउंसिल में भी तीन मेंबर थे, एक इसमें से कमांडर इन चीफ हो गया, एक अब लॉ मेंबर आ गया, तो मतलब चार होने वाले हैं, मतलब चार हो गए हैं अब ये, राइट। लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन लेजिस्लेचर। लोकल रिप्रेजेंटेशन कैसे, इन्होंने एक लेजिस्लेटिव विंग भी खोल लिया था और यहाँ पर लोकल को वो कर रहे थे सिलेक्ट। ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ जो थी ना, सीओडी, ये रिड्यूस करके 18 पे ले आए थे यार, इंक्रीज नहीं हुई थी, तो ध्यान में रखिएगा। वन जैसे ही कैंसिल करेंगे तीन ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1800 में वेलेस्ली हैड सेट अप फोर्ट विलियम कॉलेज फॉर ट्रेनिंग ऑफ न्यू रिक्रूट्स टू द ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल सही। और ये फोर्ट विलियम बनाया कब गया, ये बनाया गया 1700 में। ठीक है, 1806 Wellesley's College was approved by the Court of Directors and went on to become the best college in British India। करेक्ट पूछिए। और आप देखोगे 1800 में बनाते हैं यार, 1806 में कोर्ट ऑफ डायरेक्ट डिसअप्रूव कर देते हैं इस चीज को। ठीक है, तभी ये बंद हो जाता है फिर जो ट्रेनिंग दे रहे, तो ए आंसर होगा हमारा सिर्फ इसका। एक्ट ऑफ फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इंडिया वाज टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ क्राउन थ्रू अ वॉइसरॉय विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ 18। थ्रू क्राउन के बाद 1858 में आप ध्यान रखेंगे 1857 की क्रांति हो गई, उसके बाद क्राउन का रूल आ गया। क्राउन ने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया डायरेक्ट, ठीक है, जिसका काम था 15 मेंबर की काउंसिल से एडवाइस लेके अपने डिसीजन देना। बाकी सारा स्टेट स्टेट वो सेम रहा। गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय बोलने लग गए थे इंडिया का। डुअल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय पिट्स इंडिया एट 34 केम टू एन एंड, बिल्कुल सही है दोनों। देखो डुअल सिस्टम का मतलब क्या है, डुअल सिस्टम मतलब पिट्स इंडिया एक्ट ने 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जो सिविल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स देखेगा। तो ये एंड करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ले आए गए 15 काउंसिल की, जो सारी चीजें देख रहा है, समझ रहे हो। तो डुअल सिस्टम अबॉलिश हो रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द दिस वेट Consider the following about the reforms introduced by Cornwallis in British India. He established the principle of making appointments primarily on merit, establishing the groundwork for the Indian civil service. He amalgamated the three branches of civil services, namely commercial, judicial, revenue, for the improved coordination. He enacted a uniform civil code for all British subjects in several Indian provinces. तो कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स देखने हैं आप इन ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, करेक्ट ढूंढना है आपको। ये लास्ट में यार ये वाला स्टेटमेंट तो गलत था, मैंने गलती से आपको सी करवा दिया। ए है, ए नहीं होगा इसका, बी होगा, क्योंकि यहाँ पर वॉइस रॉय नहीं है, यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मैंने जो बताया था आपको। फिर ही एनेक्टेड अस यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल ब्रिटिश। यूनिफॉर्म सिविल कोड्स तो आज तक वो नहीं हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। थ्री जैसे ही गलत करोगे दो ऑप्शन कट जाएंगे हमारे। ई स्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑन मेरिट, बिल्कुल सही। इंडियन सिविल सर्विस में ए तो होगा ही, ये दोनों ऑप्शन बचते हैं। इमैलगेमेटेड द थ्री ब्रांचेस ऑफ सिविल सर्विसेज, नेमली कमर्शियल, जुडिशियल एंड रेवेन्यू, फॉर इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें से आप देखोगे कि यार अमेलगेमेटेड नहीं बल्कि डिफरेंशिएट किया था इन्होंने। ठीक है, अमेलगेमेटेड मतलब तीनों को ज्वाइन कर देना, बल्कि डिफरेंशिएट किया था इन्होंने, तो ये आंसर रहेगा। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू डिस्टिंक्ट इलेक्टोरेट्स बाय। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है यार। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले 1909 में आए थे, और क्या आया था, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गया था।
फिर 1919 में किसके लिए आया था ये एज इट इज याद रखो, 6 क्रिश्चियंस एंग्लो इंडियंस। फिर 1932 में किसके लिए आया, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, 1 2 3 4 5 5 लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स आए। This act includes provisions for joint sitting in the event of stalemate and subjects are separated into 3 lists। 3 लिस्ट में सेपरेट कर दिया था, प्रोविंशियल, फेडरल एंड कंकरेंट। ठीक है, ये तीनों आ गई थी यार। रेजिडरी लिस्ट हमने दी थी गवर्नर जनरल को, द गवर्नर जनरल wielded रेजिडरी पावर, बिल्कुल सही। गवर्नर जनरल मतलब वॉइस रॉय। डायरकी इन प्रोविंसेस वाज अबॉलिश्ड एंड प्रोविंसेस वर गिवन ऑटोनॉमी, बिल्कुल सही। द इंडियन काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर अबॉलिश्ड, सही। Which of the following had above mentioned provisions? तो आपने provisions as it is रट लेने हैं जिसके भी हैं, और आपको पता चल गया होगा ये 1935 के, और ये चारों को चारों provisions रट लो यार, इसलिए डाले गए हैं। इनके मतलब तो समझ में आ गए ना। देखो मैं एक बार आपको समझा भी देता हूँ, ये क्लास का काम होता है यार पूरा समझाना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या बोला, देखो एक होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर में जो होती है फेडरल, और एक होता है हमारा प्रोविंशियल। अब इन्होंने बोला था कि मैं ऑल इंडिया फेडरेशन बनाऊंगा सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, जो गवर्नर प्रोविंस चीफ प्रोविंस सारे एक के अंदर आएंगे, बट ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, क्यों, ऑब्जेक्शंस थी। तो ये किसके उस पे चला फिर पैटर्न पे, 1919 के पैटर्न पे। 19 का पैटर्न क्या था सेंट्रल पे, सेंटर पे था कि यार एक तो तुम्हारा लेजिस्लेचर रहेगा और एक एग्जीक्यूटिव रहेगा। 19 के अकॉर्डिंग ये बाइकैमरल बन गया था, ठीक है। एग्जीक्यूटिव किसके थ्रू चलता है, गवर्नर जनरल वॉइस रॉय के थ्रू चलता है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स ये हमारे सेंट्रल सब्जेक्ट्स देखेंगे, एंड प्रोविंसेस को इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स दे रखे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी, और इनके प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स यही देखेंगे, लेजिस्लेचर्स वाले। प्लस यहाँ पर एग्जीक्यूटिव विंग रहता है जो गवर्नर हेड करता है, ठीक है। इनके ऊपर बैठा होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। It was introduced in 1878 and 79. It consisted of 1/6 of covenanted posted to be filled by the Indian high families. करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो यार पहले तो आपको लिटन पता होना चाहिए। 1876 से 1880 का टाइम पीरियड रहता है इनका लिटन का, एंड ये इंट्रोड्यूस कराया था लिटन ने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज, एंड ये फेलियर कंसिडर हो गया था यार, इसलिए सी मतलब दोनों सही हैं ये। Which of the committees were formed to oversee the commercial civil service reforms? तो भाई ली कमीशन, साइमन कमीशन, एटिक्सन कमीशन एंड हंटर कमीशन में से एक कमेटी में से एक बताओ आप। तो यार आप देखते ही पहचान रहे हो कि साइमन कमीशन तो 1919 से रिलेटेड था कॉन्स्टिट्यूशनल उससे, तो 2 आप कैंसिल कर दोगे, एक ही गलत हो रहा है बस, मतलब आपके पास 3 ऑप्शन अभी भी है। आप हंटर कमेटी देखोगे, जलियांवाला बाग में हमने बिठाई थी ये, तो हमारा 4 भी रॉन्ग हो रहा है, 4 ये रहा। अब बचा ये, और 1 एंड 3 एंड 1। तो आपको पता है एटिक्सन और ली एज इट इज याद कर लीजिए सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के लिए, तो डी विल बी द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, फौजदार्स, रेवेन्यू कलेक्टर्स, आमिल्स helped in maintaining law and order during the Mughal, कोतवाल मेंटेनेंस ऑफ लॉ ऑर्डर इन द सिटी। करेक्ट पेयर ढूंढिए, ठीक है। तो देखो आप, तो यार ये देखना है आपने, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी कोतवाल, ठीक है। हेल्प्ड इन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग मुगल, ये गलत है, ये रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प करते थे, ठीक है। तो 2 हमारा गलत है, तो नन ऑफ द दीज हो जाएगा, क्योंकि कोतवाल भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर में हेल्प तो करते ही थे, साथ में रेवेन्यू उसमें भी करते थे, ठीक है। डी लिखा है, डी होगा इसका। Cornwallis organized a regular police force to maintain law and order by modernizing thanas in district under an Indian daroga and a superintendent of police at the head of district. Benting appointed a SP for each division held by a number of spies known as goendas. Mayo abolished the office of SP. Correct statement ढूंढ दिया दोस्तों। तो यार आपने देखना है कि मायो अबॉलिश नहीं करता, बल्कि मायो तो लगाता है, तो 3 और 3 गलत हो जाएंगे हमारे, ठीक है। एंड बेंटिंग अपॉइंटेड एसपी, एसपी नहीं है, बेंटिंग अबॉलिश कर देता है, ये ध्यान में रखिए, बेंटिंग अबॉलिश कर देता है एसपी की पोजीशन, ठीक है। तो 2 गलत हो जाएगा, 1 ओनली है नहीं ऑप्शन में, डी रहेगा। द रिकमेंडेशन ऑफ द पुलिस कमीशन 1816 लेड टू द इंडियन पुलिस एक्ट, and as per the Indian Police Act, the ranks of police officials were uniformly introduced all over the country. The Police Commission recommended the establishment of CID at the center and CIP in the provinces. Correct statement ढूंढनी है।
तो आप देखोगे यार कि पुलिस कमीशन, आपने देखा CID जो डिपार्टमेंट है वो प्रोविंस के लिए चाहिए, CIB वो सेंट्रल के लिए चाहिए। तो 3 गलत हो जाएगा हमारा और आंसर हमारे पास आ गया। ये एज इट इज देख लो यार, 80 की वजह से, 1860 की वजह से 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट आया। ठीक है। Prior to the revolt of 1857, British military officers were organized as the Queen's Army and the Company Troop. 1857 के बाद the Indian section of the army was to be used to defend the Indian territory of the empire from other imperialist power like Russia, Germany, France. The British section was to be used for army of occupation, the ultimate guarantee of British hold over India. करेक्ट ढूंढना है। तो यार ये दिखा रहा है कि मिलिट्री कैसे हमने चेंज करी 1857 और 1857 के बाद। 1857 ऐसा था जहां पर मिलिट्री में रिवोल्ट म्यूटिनीज हो रही थी, अपनी नेटिव इन्फेंट्रीज म्यूटिनी कर रही थी। आपने डिफरेंट डिफरेंट पढ़ा था, तो तीनों सही ऑप्शन है यार, एज इट इज लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। सी नहीं है इसका आंसर, डी है। तीनों सही है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश। The proportion of Europeans to India was fixed at 2:1 in the Bengal Army. ठीक है, ये अगेन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री रिफॉर्म्स देख रहे हैं हम। आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा ये मिलिट्री रिफॉर्म। देखो अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं ना तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, राइट। अनएक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से मेरे को भी रिस्ट्रिक्टेड होकर आपको बताना पड़ रहा है चीजें। अब इसलिए मेरे को, अगर आपको इसका MCQ का फायदा उठाना है प्रॉपर, तो आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए एंड देन आपको सॉल्व करना चाहिए इसे। हमने डिफरेंट, अब ये पहुंचे हैं, हमने सिविल देख लिया था, हमने सिविल सर्विसेज का देखना, पुलिस का देखा था, अब मिलिट्री का देखा। आप चाहे तो पॉज कर लो, वो पेज पढ़ लो एंड देन आप करो इसे क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि वो पूरा मैं समझाऊंगा आपको MCQ के थ्रू, जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको जितना समझाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत बड़े लेक्चर्स में हम कवर करते हैं यार। आई मीन जो 2 घंटे का हम प्रॉपर लेक्चर्स लेते हैं उसमें कवर करते हैं। सो द हाइएस्ट रैंक एन इंडियन ऑफिशियल कुड रीच टिल 1914 वाज दैट ऑफ अ सूबेदार। इंडियन सैंडहर्स्ट कमिटी वाज एसोसिएटेड विद इट। कितना इंपॉर्टेंट है यार, करेक्ट ढूंढना है हमको। तो यार आप ये देखोगे, इंडियन टू 1:2 है रेशियो, बंगाल आर्मी में नहीं है हमारी क्या बोलते हैं, कौन सी आर्मी में? बंगाल आर्मी में ये रेशियो था, मद्रास में अलग रेशियो था। ठीक है, कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन 1:2 हमारी बंगाल आर्मी के लिए। और बाकी 2 और 3 बिल्कुल सही है यार। सैंडहर्स्ट कमिटी इज रिलेटेड टू मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 2 and 3 will be the answer. An ideology of martial races and non-martial races assumed that good soldiers could come only from specific communities. The soldiers from Awadh, Bihar, Central India, South India who had participated in the revolt were declared to be martial. Communal, caste, tribal, regional consciousness were encouraged to check the growth of nationalist feeling among others. करेक्ट चीज है। मार्शल किने बोला? अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया के। टू इनकरेक्ट होगा यार, टू यहाँ है, यहाँ है, यहाँ मार्शल क्लासेस जो लड़ सकती थी वो पंजाब एंड गोरखास को बोला गया था उन्होंने। तो 1 and 3 विल बी द आंसर। देखा, एक अगर आपको पता तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो अब जुडिशरी के रिफॉर्म्स में हम पहुंच गए हैं। जुडिशरी वाज वेल डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल एरा। मेयर्स कोर्ट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर अ कॉमन लॉ सिस्टम बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड जुडिशियल प्रेसिडेंट अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। Supreme courts were created in Bombay, Calcutta, and Madras. The system of circuit courts were introduced by Lord Cornwallis. हमें करेक्ट ढूंढना है। तो आपने देखा था यार, ये वेल डेवलप थोड़े ना था प्री कॉलोनियल एरा से, वो तो डेवलप करा हम लेटर ऑन। तो 1 जैसे आपको पता चल जाता है, ये 2 गलत हो जाते हैं हमारे। एंड मेयर कोड्स फाउंडेशन ऑफ कॉमन लॉ सिस्टम, ये गलत है, ये तो हमने बहुत लेट सेटअप करे थे। ठीक है, तो 2 and 4 विल बी द 2 और ये सही है, लेकिन देखो, रेगुलेटिंग एट सुप्रीम कोर्ट्स वर क्रिएटेड नॉट इन बॉम्बे ओनली इन कैलकाटा। ठीक है, तो हमारा 3 गलत होगा, तो 2 and 4 विल बी द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग। ठीक है, इट वाज हेल्ड इन लंदन इन इंग्लिश मीडियम ओनली। द सब्जेक्ट्स फॉर द एग्जाम इंक्लूडेड क्लासिकल ग्रीक एंड लेटिन लर्निंग। बिल्कुल सही। द मैक्सिमम एज फॉर अपीयरिंग द एग्जामिनेशन was reduced to 21 in 1878 अंडर लिटन। लिटन में इसको 19 कर दिया गया था दोस्तों, 21 नहीं 19 कर दिया गया था। थर्ड गलत है, आपको ये ध्यान में रखना है। करेक्ट पूछा है, 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, कंसीडर फॉलोइंग विद रिगार्ड्स टू रिफॉर्म्स अंडर विलियम बेंटिक। सदर दीवानी अदालत एंड सदर निजामत अदालत वर सेट अप इन बंगाल
for the convenience of the people of upper provinces. English language was made to replace Persian in the Supreme Court. A law commission was set up in 1833 under Macaulay for codification of Indian laws. करेक्ट ढूंढना दोस्तों। तो आपने देखा होगा यार सदर, ये अब कहाँ पर लिखा है, बंगाल में अपर प्रोविंसेस के लिए नहीं था, इलाहाबाद में था। ये ट्रिक यहाँ पर है। तो अब जैसे इसे वन कैंसिल करोगे तो ये आपका तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 and 3 विल बी द आंसर। इसको एज इट इज देख लो यार, ये बिल्कुल सही है। दैट इंग्लिश लैंग्वेज वाज मेड टू रिप्लेस द पर्शियन। पर्शियन क्यों चल रही थी कि मुगल्स की ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी। ठीक है। Which of the following coincide with Warren Hastings policies of reformation in India? He abolished the system of dastaks और free passes, introduced the dual system of governments। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग डुअल सिस्टम को खत्म कर देता है। तो 2 जैसे ही गलत करोगे 1 and 3 विल बी द आंसर। अब 1 and 3 आप पढ़ते हैं क्या है, क्योंकि हमने सिर्फ एलिमिनेट करके आगे नहीं बढ़ना। ये एग्जाम में करोगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने सीखना है। अंडर द जुडिशियल रिफॉर्म्स ही ब्रॉट अबाउट द हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ अपील नोन एज सदर दीवानी अदालत, whereas the highest appellate criminal court was known as the सदर निजामत अदालत। ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे। एज इट इज याद रखेंगे दोस्तों। Consider the following about the judicial reforms introduced by Cornwallis in British India. At the top of the judicial system, Sadar Diwani Adalat and Sadar Nizamat Adalat were presided over by the Governor General and his council. Cornwallis के वो ढूंढने आपने। Apart from being responsible for collection of revenues, the collectors were given judicial powers, and thus the district collectors came to be known as also as district magistrates. All the courts at the bottom of the judicial system had Indian judges. करेक्ट ढूंढना है दोस्तों। तो आपको एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर पता होना चाहिए कॉर्नवालिस का, कि इन्होंने डीएम की पोजीशन से जुडिशियल फंक्शन हटा दिए थे। तो यहाँ पर जो दे रखा है ये गलत है 2। तो 2 आप जैसे ही गलत करोगे ये गलत होगा, 1 and 3 विल बी द आंसर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत 1861 की आप देखो, अ फिफ्थ मेंबर हु वाज टू बी अ जूरिस्ट वाज एडेड टू वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इट हैड नो कंट्रोल ओवर द बजट। इफ अ बिल गेट्स अप्रूव्ड बाय द वाइसरॉय, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुड डिसअलाउ अ लेजिस्लेशन। करेक्ट ढूंढना है। तो हमारे तीनों ही सही हैं। आपको 1861 में याद रखना है कि एक फिफ्थ मेंबर एडेड हुए। गवर्नर काउंसिल के हमने 1853 में एक लॉ मेंबर ऐड करे थे ना, एक लॉ मेंबर ऐड करे थे तो 4 हो गए थे वापस 3 से। अब हमने एक और मेंबर ऐड करा जो ज्यूरिस्ट है, जो मैकॉले नहीं होंगे, दूसरे मेंबर होंगे, तो हमारे टोटल 5 हो जाएंगे। राइट। एंड इट हैड नो कंट्रोल ओवर द बजट। बजट पे जो कंट्रोल आया हमारा 1909 से आने लगा था। इफ अ बिल गेट्स अप्रूव्ड बाय द वॉइसरॉय, बिल्कुल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमने बोला था 1858 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया, डुअल कंट्रोल हटा दिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास काफी इमेंस पावर्स आ गई थी। मायोज रेजोल्यूशन देखिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए, लोकल बॉडीज के लिए क्या कहा है इन्होंने। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय दिस रेजोल्यूशन। बिल्कुल सही। मायोज रेजोल्यूशन एम्फेसाइज्ड लोकल इंटरेस्ट, सुपरविजन, केयर इन द मैनेजमेंट ऑफ फंड्स डिवोटेड टू लोकल पब्लिक वर्क्स। सही। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर रिक्वायर्ड टू पास म्युनिसिपल एक्ट्स टू इम्प्लीमेंट इट। The various provincial governments were required to pass municipal acts to implement it। करेक्ट ढूंढना है आपको। तो आप देखोगे यार ये सही है, हमारा फर्स्ट टाइम पूछा गया है। फर्स्ट टाइम जब आ जाए ना, तो यार फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन 1861 में हुआ था। ठीक है, नॉट इन 1870। तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा हमारा। एंड 1 जब गलत हो जाएगा तो तीनों हमारे हमारे पास ऑप्शन बचेगा 2 and 3। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। ऑल राइट गाइस, Rippon's resolution of 1882 was a landmark official statement in British India. It is related to, देखो ये चीज है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, बाकी और किसी चीज से नहीं है। यह ध्यान रखेंगे। इसीलिए रिपन को हम कभी भी क्वेश्चन में आ जाए स्टेट सिविल सर्विस में, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन थे? रिपन। टाइम पीरियड क्या है? 1880 से 1884। Consider the following about the 1908 Royal Commission on Decentralization. It believed that the panchayat should be given adequate sources of income. It urged withdrawal of existing restriction on the powers of taxation of sub-district boards. It recommended that the government should relieve the municipalities of any charges in regard to primary education. करेक्ट ढूंढना है। तो आप देखोगे यार कि ये रिलाइव नहीं करा है उन्होंने, बल्कि उनको देने की कोशिश करी कि भाई प्राइमरी एजुकेशन से जो भी चीजें हैं वो म्युनिसिपैलिटीज को ही करने दीजिए। तो 3 नहीं होगा, 1 and 2 विल बी द आंसर। ठीक है,
Consider the following about Government of India Resolution 1915. It contained official views on the recommendation of the Decentralization Commission. Most of its recommendation were implemented successfully. यहाँ डाउट हो सकता है. तो जैसे कि मैंने बोला था, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आपको. एंड सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही थी उस वक्त चीजें. पेपर में तो बहुत कुछ लिख कर आ रहा था, लेकिन वो ऑन रियलिटी में ऑन ग्राउंड वो करना बहुत डिफिकल्ट था. और ना ही वो उसके लिए पॉलिटिकल विल और उनकी विल भी चाहिए थी, वो नहीं थी. Consider the following statements with regards to resolution of May 1918. It reviewed the entire question of local self-government in the light of the announcement of August 20, 1917 that declared grant of responsible government to India. It suggested that the local bodies be made as representative as possible with nominal authority vested in the people. Correct ढूंढना है आपको. तो यार यहाँ पर देख रहे हो, आपको रिप्रेजेंटेटिव भी बनाना, नॉमिनल अथॉरिटी क्यों, रियल अथॉरिटी चाहिए होगी ना. तो बी गलत हो जाएगा, ए विल बी द आंसर. ऑल राइट गाइज, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सीरीज. आपने इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की कोशिश करी होगी आफ्टर डूइंग योर चैप्टर फ्रॉम द स्पेक्ट्रम एंड देन सॉल्विंग एमसीक्यूज फ्रॉम हेयर. देन इट विल गिव यू द मैक्सिमम बेनिफिट. अदरवाइज यार, अदरवाइज इट विल बी लाइक आपको समझ नहीं आएगा, आपको मेरे लिए वेट करना पड़ेगा. एंड आई हैव रिस्ट्रिक्शन कि मैं आपको एक जोन के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि देन इट विल बी नॉट, देन ये जस्टिस नहीं होगा इस सीरीज के साथ, क्योंकि यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, अपना पढ़कर आते हैं और फिर एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं. ठीक है. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दीज कोर्सेज, डू सब्सक्राइब. 300+ एमसीक्यूज हैं गाइस. एंड आपको मजा आएगा. इनके क्वेश्चंस आपने देख ही रहे हैं कैसे बिल्कुल ब्यूटीफुली यूपीएससी पैटर्न पे हमने बना रखे हैं. रैंडम क्वेश्चंस नहीं है. ठीक है. ऑल राइट गाइस, thank you so much, and we will meet in the next lecture.